जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल फीके पड़ जाए, सवाल कमज़ोर पड़ जाए तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। ऐसा ही किसानों के साथ हुआ जब सत्ता के सामने किसानों की जो आवाज़ थी वो कमज़ोर पड़ने लगी तो किसानों ने आवाज़ बुलंद की। लगभग 3 महीने हो चुके हैं, किसान संघर्षरत है, किसान अपना संघर्ष है वो कर रहा है। आज किसानों द्वारा चक्का जाम का ऐलान किया गया था। आप देख सकते हैं डबवाली में इस वक्त हम मौजूद हैं। डबवाली के गोल चौक पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है। हमारे साथ किसान हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है? गुरदेव सिंह जी। चक्का जाम किया गया है, क्या लगता है सरकार मानेगी, पीछे कुछ हटेगी? ना हटोगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ना किसान पीछे हट रहे हैं ना सरकार पीछे हट रही है, बीच का रास्ता कुछ नहीं निकल रहा है। तो किसान क्या करने वाला है, आगे रणनीति क्या रही? किसान करना की जो ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਖੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋੜੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਵਰ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੁੜੇ ਠੇਰੇ ਮਰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ कितना चर मर्जी बैठना, पर मोदी मानना पड़ेगा। आज जैसे कि सभी को पता है कि 26 जनवरी में जो हुआ वो कहीं ना कहीं सबक प्रशासन ने भी सीखा और किसान ने भी सीखा। तो आज कैसे की रणनीति बनाई गई है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो आज नहीं होगा? ना तो 26 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ सब हथकंडे अपनाए हैं सरकार ने, जो अपनाती है। कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती थी वो हुआ भी। सरकार चाहती थी कि कहीं ना कहीं आंदोलन फीका पड़े। अब किस ताकत के साथ किसान आगे बढ़ रहा है अपनी एकता नाल? साडे ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਏਕਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। आपका क्या नाम है? अनमोलदीप जी। हमारा काम है सवाल पूछना और हम सवाल पूछ रहे हैं। तो आज चक्का जाम किया गया है 3 घंटे का, कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान हो रही है। देखो जिन्नी कुछ गल जे आम जनता की ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਰਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही देखते आए हैं कि आज छोटा सा आंदोलन आज बहुत बड़ा बन चुका है, कहीं ना कहीं जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसको लेकर भी सरकार और कहीं ना कहीं फिर से किसानों पर आरोप लगा रही है। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਏ। तो पता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ किसानों का नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों की जो आवाज़ है वो बुलंद हुई है। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वीरो रानी है।
हाँ जी। कहाँ आज किसानों के समर्थन में आप आए? हाँ, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिले की उप प्रधान हूँ, स्टेट की उप प्रधान हूँ और हम सीटू की तरफ से किसानों का समर्थन करते हैं, समर्थन के लिए हम आए हैं। लोग कहते हैं कि ये किसानों का सिर्फ संघर्ष है, आज आप आई हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी जो सिर्फ किसानों का संघर्ष मानकर चल रही है आज? नहीं नहीं, ये किसानों का नहीं है, सभी आम जनता का है, आम जनता का है और हमें सभी जनता को हम एकजुटता होके और किसानों का समर्थन करना चाहिए और साथ चलना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, जिला प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मैं किसानों के समर्थन के लिए आई हूँ क्योंकि ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है अगर समझी जाए तो। मैं मोदी सरकार से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, जैसे वो कहते हैं कि 3 बिल है किसानों के फ़ायदे के लिए, आम जनता के लिए, जब दुगनी करें। हाँ, आय दुगनी कर रहे हैं, तो जब हमें है ही नहीं उस चीज़ की लालसा ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा सब कुछ, वो ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे फ़ायदे के लिए, हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, आप बंद कर दो। क्यों उस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हो? फिर नंबर ये 26 जनवरी वाला जो इन्होंने प्रोग्राम किया था, किसानों को पहले वहाँ आने का आमंत्रण दिया कि आप लोग भी वहाँ पे आओ, आर्मी भी थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने एक जालसाज रचा था कि 12 बजे के बाद जैसे ये इंटर होते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई अफरा तफरी डाल के इस आंदोलन को रद्द किया जाए। फिर गोदी मीडिया है जो फेमस हो चुकी है, आजकल सारे टीवी चैनल हैं, अपने को पता ही है कौन कौन कैसे कैसे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो अपने तिरंगा था वो काफ़ी हाइट पे था और जो किसानों का था केसरी था वो नीचे था। उन्होंने दिखाया कि ये देखिए जी झंडे की ऐसे कर दी, बेअदबी कर दी। ये गाड़ियों पे ये जो जाते हैं नेता लोग जाते हैं, थोड़ी देर बाद झंडा कांग्रेस वाला ये जो अपने हैं इंडियन लगा होता है उसको थोड़ी देर बाद फेंक दिया जाता है, तब उसकी बदबी नहीं होती। मोदी जी ने साफा डाला हुआ है हमारे झंडे के निशान का, उससे वो मुँह साफ कर रहे हैं। तब मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो बदबी नहीं है? अगर वहाँ से उनको नीचे झुका दिया तो वहाँ देश का भी अपना मतलब बता रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये। मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। सरकार बार बार कहती आई है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, अब भी सरकार उसी बात पर अड़ी है, सरकार किसानों को भड़काया जा रहा है, कांग्रेस का ये धरना चल रहा है, तो क्या आपको भी किसी ने भड़काया? जी नहीं, हमें तो किसी ने, हम तो अपने हक के लिए अपने भाइयों के साथ हैं, क्यों भड़काएंगे? जब हमारे पेट में अन्न जाएगा तो हमारे अंदर आवाज़ आएगी, जब भूखे मरेंगे, जो 800 रुपये किलो आटा मिलेगा तो ऑटोमेटिक जागरूकता आ ही जाती है। क्या नाम है? राजवीर ਸਿੰਘ ਜੀ। तो किसान एकता से ही आप जुड़े हुए हैं? किसान ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कहीं ना कहीं सरकार ने जो 13 लेयर किसानों के लिए बैरिगेड्स लगाए, किलें लगाई, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों, कहीं ना कहीं सरकार को जो किसान है वो आतंकवादी लग रहे हैं अभी भी। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਭਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ ਲਾਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਟ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2.5% ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲੰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ भी किते कोई भीड़ पैंदी है फ्री लंगर, फ्री पानी, फ्री दिंदे आ सब कुछ। कहीं ना कहीं सरकार जो वार्ता का एक रास्ता लेकर आई थी वो भी 12वीं बाद के बाद हुई, वो भी खत्म कर दिया सरकार ने, वो रास्ता भी खत्म कर दिया। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਠਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 4-10 ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿੱਲ। आपका कहना है? जगदीप सिंह जी। आप भी डवाली से? ना जी, गांव पन्नी वाला मोरी का जी। हाँ जी। कुछ दिन पहले हम बात करें तो 4 दिन पहले ही हमारा बजट आया, किसानों की जेब में कुछ आया? कुछ नहीं आया जी, खाली है किसान जमा, खाली है किसानों के विरोध पे ही आया जी। हाँ जी, मैं 26 जनवरी वाले दिन भी वहाँ था, पूरा पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहाँ पर, डंडों पर तारे बाहर रखी, ये देखे जी। हाँ लगी है जी हमारे, हम भाग कर साइड पर हुए। जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली का जो 26 जनवरी को हुआ, आप उस वक्त मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिया गया था किसानों को, तो वो डाइवर्ट कैसे हुआ? डाइवर्ट जी, वो रास्ता बंद कर दिया। वो जो किसानों को रिंग रोड पर मुड़ना था, वो बैरिकेड वहाँ आगे लगा दिए, किसानों को सीधा रास्ता कर दिया लाल किले की तरफ। वो सब चाल थी सरकार की। तो हमने जैसे वायरल वीडियोस में भी देखा कहीं ना कहीं किसान और जवान आमने सामने भी हुआ। ये सब झूठ है। पहले उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, किसान को कुछ पता ही नहीं चला जी वो कहाँ जाए। भड़क गए किसान, कोई इधर हो गया कोई इधर हो गया, पता ही नहीं चला जी। हाँ जी। हरियाणा किसान एकता डबवाली से अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुरुप्रेम सिंह, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज चक्का जाम किया गया है 3 घंटे का, तो कैसी रणनीति बनाई गई है, कैसे रूट रखे गए और कहाँ कहाँ पे चक्का जाम किया गया? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਚੌਂਕ, ਖੂਹੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਔਡਾਂ, ਪਿਪਲੀ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਗੋਰੀਵਾਲਾ, 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੀਸਫੁਲੀ तरीके नाल यह धरना प्रदर्शन चलिया जी, तो असीं सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जी। देख सकते हैं कि किसानों ने ऐलान किया था कि जो 6 जनवरी है उसको वो चक्का जाम करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किसानों का जो 3 घंटे का चक्का जाम है वो चल रहा है। वही किसान लगभग 3 महीने से संघर्षरत है। वहीं आप हम बात करें अंतर स्तरीय, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज 26 जनवरी को अगर किसानों की परेड होती है तो हमारी भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती होगी, वो ऐसा हुआ भी। अब अंतर्राष्ट्रीय के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी किसानों के समर्थन पे उतर आए हैं, परंतु जो भारत के कुछ लोग हैं जो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब किसान मरे थे, जब किसानों की मौत हुई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके उनके लिए शोक नहीं जताया, ना ही भाजपा के नेताओं ने, ना ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने। परंतु जब किसान के इस समर्थन में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है तो आज वो लोग ट्वीट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डबवाली के हम गोल चौक पे मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि 3 घंटे का यहाँ चक्का जाम किया गया है किसानों द्वारा। तो आइए हमारे साथ प्रशासन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन द्वारा क्या इंतजामात किए गए हैं। सर, क्या इंतजामात किए गए हैं प्रशासन? पुलिस का, प्रशासन का पूरा बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल प्रबंध है, अच्छे से प्रबंध है। व्हीकल कोई जाम नहीं है किसी प्रकार का। ये अपना एजिटेशन कर रहे हैं, अपना स्टेज पे बैठ के कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। कितने की यहाँ फोर्स हम बात करेंगे, कितनी फोर्स लगाई गई है? कम 100 आदमी करीब होगा। हाँ, आम लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों के कुछ रूट डाइवर्ट किया गया है या किसी प्रकार से? हर तरह का प्रबंध है, रूट डाइवर्ट भी किया गया, कोई दिक्कत। इसी के लिए कुछ, हाँ, जैसे पेशेंट वगैरह आ रहे हैं या इसी तरह के कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस है, उनको हम निकलवा रहे हैं। ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जी, जिनसे हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि डबवाली के प्रशासन द्वारा क्या इंतजामात किए गए हैं। आगे भी ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।